Hi, good evening, and welcome back to another session of data structures class. In today's video, I'm going to cover the tree traversal using non-recursive methods. So we have already covered various tree traversal techniques like in-order traversal, pre-order traversal, and post-order traversal. So in the recursive approach, we use the code something like this: void, suppose in order, root. So if root is not equal to null, so basically in order traversal, we first go left, then print root, and then go to right. In pre-order traversal, we first print root, then left, and then right. And in post-order traversal, the order is left, right, and root. ठीक है, तो ये हम अपने BST के बाइनरी सर्च ट्री के लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो हमारा कोड कुछ इस तरीके से था. सॉरी, this print statement is going to be in the middle. पहले हमें लेफ्ट में जाना है. इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, देन printf परसेंटेज t root data and in order root right. राइट, तो इसका हमने रिकर्शन ट्रेस भी किया था काफ़ी डिटेल में इन द प्रीवियस वीडियो. So I will give the link of that video in the description box. जिनको कोई भी confusion है recursive approach पे, they can go and watch the video, right? तो देखिए, if you want to do the traversal in a binary search tree or any other tree, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वी शुड हैव द ट्री. तो सबसे पहले तो हमें ट्री का ही कोड लिखना पड़ेगा. उसके लिए वी फर्स्ट नीड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नोड. तो ट्री का स्ट्रक्चर जैसे हमें पता ही है, वी हैव थ्री कंटेनर्स इन ए नोड. बेसिकली वी हैव ए space to store the data, a pointer to store the left child, a pointer to store the right child. Okay, and this is the simple structure. Then this is a utility function. I mean, the purpose of this function is to create a new node and initialize it. ठीक है, ये क्या कर रहा है? पहले नोड को क्रिएट कर रहा है और ये जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करके न्यू नोड के एड्रेस को रिटर्न कर रहा है. दिस इज ए वेरी सिंपल फंक्शन. ठीक है, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सो नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दिस. अब इंसर्शन कैसे करते हैं? दिस is a very simple code to insert a node in the binary search tree. अब यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन कैसे करते हैं? वी आर यूजिंग BST and BST follows a rule that all nodes that are smaller than the root goes in the left side, and all the nodes that are greater than the root goes to the right side. ठीक है, तो जब हमें सर्च करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे? लेफ्ट या राइट में से हम कहीं पे जाएंगे. ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है ट्री की? इट गिव्स अस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n for insertion
deletion and searching. ठीक है, this time complexity is only possible if we are dividing the problem space into two halves. मतलब अगर हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है वो बैलेंस्ड है, then ideally we achieve this time complexity, or in average case we achieve this time complexity. But in worst case, अगर ट्री हमारा लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, तो we may get big O and time complexity. ठीक है, that we have already discussed. Now अब ये कैसे वर्क कर रहा है हमारा इंसर्शन? सपोज आई एम कॉलिंग, सपोज दिस इज द की, एक सैम्पल हम ट्री ड्रॉ करते हैं. ये मैं ऑलरेडी एक्चुअली एक्सप्लेन कर चुका हूँ in our previous video. Suppose this is the tree and 60, 50. Suppose we have to insert 45. ठीक है, तो कैसे हम इंसर्ट करेंगे? We will call the method, insert method, like this: insert root and 45, right? तो अब यहाँ पे क्या होगा? रूट इज 50 बेसिकली यहाँ पे. तो सी, रूट इज 50, तो क्योंकि 45 इज लेस देन 50, दिस विल ओपन, दिस विल गो टू द लेफ्ट साइड, है ना? तो रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट, रूट का लेफ्ट क्या है? 40, तो 40, 45. अब हमें क्या करना है? सिंस 45 इज ग्रेटर देन 40, तो हम जाएंगे 40 का राइट इज इक्वल टू इंसर्ट, व्हाट इज 40 का राइट? नल, एंड दिस इज 45. चलिए अब अपने एल्गोरिथम पे आ जाते हैं. मतलब ये तो हमारी लास्ट कॉल थी, ठीक है. व्हेन रूट इज इक्वल टू नल, वो सिंपली नई नोड को क्रिएट कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है. सो दिस लाइन विल क्रिएट ए न्यू नोड 45 एंड रिटर्न टू दिस कॉल इंसर्ट 40, 45. तो यानी 40 का जो राइट नोड हो गया हमारा, वो 45 क्रिएट हो गया, ठीक है. अब ये कॉल यहाँ पे रिटर्न होगी, ठीक है. तो आफ्टर दिस, अभी हम लेफ्ट में गए थे, उसके बाद यहाँ पे इफ और एल्स, सॉरी हम राइट में गए थे, उसके बाद ये इफ और एल्स इफ वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, देन वी आर रिटर्निंग द रूट. लास्ट में क्या है? रिटर्न, रूट रिटर्न कर रहे हैं, तो ये 40 रिटर्न हो जाएगा इधर. तो यानी रूट यहाँ पे क्या है? 50, तो 50 का लेफ्ट हो जाएगा 40, और देन यहाँ पे हम 50 रिटर्न करेंगे, विच विल असाइन टू द ओरिजिनल रूट, ठीक है. तो जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करते हैं, तो हम रूट से स्टार्ट करते हैं, है ना, और रूट को हम मूव करके डाउनवर्ड्स पहले सर्च करते हैं, किस एलिमेंट को हम डिलीशन कर रहे हैं या सर्चिंग कर रहे हैं या इंसर्शन करना है. तो पहले हमें करेक्ट पोजीशन ढूंढनी है, एंड देन आफ्टर द स्टैक अनवाइंडिंग, मतलब ये तो अभी स्टैक में जा रही है सारी चीज़ें. उसके बाद जब स्टैक अनवाइंडिंग होगी, तब क्या होगा? ये सारे जो कनेक्शंस हैं वो वापस रीस्टैब्लिश होंगे, ठीक है. मतलब जिस पाथ से हम नीचे गए थे, उसी सेम पाथ से हमें ऊपर जाना है, और ये while going upwards, this will set the connections also, right? So this is very important. अब ये हमारा मेन पार्ट है, ठीक है. दिस इज द मेन पार्ट. यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. अभी हमने देखा था कि जो हमने तीनों टाइप के ट्रेवल्सल हैं, वो रिकर्सिव वर्जन उसका ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है. दिस इज द रिकर्सिव वर्जन इन ऑर्डर. अगर आपको इसको प्री ऑर्डर करना है, तो सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट पहले आ जाएगी, लेफ्ट राइट बाद में. पोस्ट ऑर्डर करना है तो प्रिंट स्टेटमेंट लास्ट में चली जाएगी, ठीक है. तो दिस इज वेरी सिंपल फंक्शन. अब हमें ये पता है कि रिकर्शन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक, है ना. एवरीबडी नोज दैट recursion is implemented using stack, and if we are not using the recursion, we need to explicitly use a stack, ठीक है. तो हम अपनी प्रॉब्लम में भी यहाँ पे सेम चीज करने वाले हैं, ठीक है. हम क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ पे एक स्टैक डिफाइन किया है, और स्टैक, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज स्टैक. इट इज ए
लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, पुश पॉप एंड पीक, लाइक दिस, है ना। तो दिस इज ए वेरी सिंपल स्टैक। यहाँ पे हमने पहले तो स्टैक का साइज डिफाइन कर दिया, ठीक है। वी हैव डिफाइंड मैक्स एज 50 और 100, जो भी हम लेना चाहें। और यहाँ पे स्टैक का डेटा टाइप हमने क्या लिया है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ एरे इज दिस, दिस इज द एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक है। दिस स्टैक इज बेसिकली स्टोरिंग द पॉइंटर्स, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं दे आर पॉइंटर इन इटसेल्फ, एंड दे कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ नोड डेटा टाइप, जो हमने अभी डिफाइन किया है, ठीक है। चलिए, so this is simple push operation. If top is less than max minus 1, I mean if there is no underflow or overflow, when top is equal to max minus 1, this is a overflow condition, तो उस केस में हमें रिटर्न करना होगा। अदरवाइज हम टॉप में इंक्रीमेंट करके नोड को उसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पोप में हम क्या चेक करते हैं, अंडरफ्लो। सो इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से कम होगा तो अंडरफ्लो है, दैट मीन्स दिस स्टैक इज एम्प्टी। तो वहां पे हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। चलिए, नाउ पीक। पीक पे हम कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करते, मतलब नीदर वी पुश एनीथिंग और नॉर वी पॉप एनी एलिमेंट। बस हमें क्या करना है, टॉप एलिमेंट को व्यू करना है, ठीक है। एंड एक हमने बहुत छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया है, इज एम्प्टी। तो यहाँ पे एम्प्टी कब होगा स्टैक, व्हेन इज द स्टैक एम्प्टी। तो हमने टॉप हम -1 से स्टार्ट करते हैं। वी ऑलरेडी नो कि जो हमारी एरे है उसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू अगर जीरो है तो दैट मीन्स देयर इज ए सिंगल एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है। तो स्टैक ये जो टॉप की वैल्यू अगर जीरो से कम है, ठीक है, यानी -1 है, सो दैट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। सो दिस इज ए रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं वेदर टॉप इज इक्वल टू -1 और नॉट। if it is equal to -1, this will return true, I mean this will return 1 in our case। if it is false, it will return 0, ठीक है। तो मतलब this you already know। अब हमें क्या करना है, नाउ हमारा मेन कोड, ठीक है, हमारा नॉन रिकर्सिव इन ऑर्डर ट्रेवल्सल। तो इस वीडियो में आई विल ओनली डिस्कस द in order traversal, and in the next video I'll discuss प्री ऑर्डर, और एक और वीडियो में हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस कोड को जरा ड्राई रन करते हैं, ठीक है। लेट्स ड्राई रन दिस कोड ऑन आवर ऑन सम ग्राफ, ऑन सम सॉरी ट्री। तो एक छोटा सा ट्री ले लेते हैं, सपोज 50, 40, 70, देन 35, 45, यहाँ पे ले लेते हैं 60 एंड 75, ठीक है। चलिए, सपोज दिस इज द ट्री। अब हमारा एल्गोरिथम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो, इन ऑर्डर ट्रेवल्सल हमें करना है। इन ऑर्डर ट्रेवल्सल में हमें पता है कि सबसे पहले हमें लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को प्रिंट करना होता है, ठीक है। मतलब हमें किसी तरीके से लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। इन ऑर्डर में रहता है हमारा लेफ्ट, रूट एंड राइट। तो लेट्स सी कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे कोड में ये अचीव हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल, आई मीन एक करंट वेरिएबल लिया, which is initialized with node, with root, sorry। So our current root is 50। हम in order traversal कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने रूट से। हम इस तरीके से पास करेंगे in order root which is equal to 50, ठीक है। चलिए, तो right now the root is 50। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज a डबल लूप।
So this is the loop. तो सी यहाँ पे हमने दो कंडीशंस दी आउटर वाइल लूप पे. इफ द करंट इज नॉट इक्वल टू नल, या तो ये कंडीशन ट्रू हो और स्टैक इज नॉट एम्प्टी. ठीक है, तो हमारे पास अभी एक एम्प्टी स्टैक है. ठीक है, तो अभी हम स्टेप 1 लेते हैं. ये हमारे पास एम्प्टी स्टैक है. सी वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, हम यहाँ पे लूप के अंदर एंटर हुए. वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, 50 इज नॉट इक्वल टू नल, तो 50 को हम पुश कर देंगे. ठीक है, 50 यहाँ पे हमारा स्टैक के अंदर पुश हो गया. और अब हम करंट के लेफ्ट में चले जाएंगे, यानी करंट का लेफ्ट क्या हो गया, नाउ द करंट इज बिकम्स 40. ठीक है, अब करंट हो गया 40. ये लूप हमारा चलता रहेगा. ठीक है, वापस करंट इज नॉट इक्वल टू नल, 40 इज नॉट इक्वल टू नल, पुश करेंगे 40 यहाँ पे हमने पुश किया. देन करंट का लेफ्ट, करंट हो गया 35. अगेन करंट इज नॉट इक्वल टू नल, 35 को भी हम पुश कर देंगे स्टैक के अंदर. ठीक है, नाउ करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट, तो करंट अभी हमारा हो जाएगा नल. ठीक है, करंट हो जाएगा नल और ये वाइल लूप से हम आ जाएंगे बाहर. ठीक है, वाइल लूप से बाहर आए, देन करंट इज इक्वल टू पॉप. अब करंट, हम ये जो टॉप एलिमेंट है इसको पॉप करेंगे, तो करंट हो गया हमारा 35. 35 को हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हमने 35 प्रिंट कर दिया. ठीक है, दिस इज प्रिंटेड. 35 यहाँ से स्टैक से चला गया, इसको प्रिंट किया और हम करंट के राइट में जाएंगे. ठीक है, तो व्हाट इज करंट, 35 और 35 का राइट क्या हो गया अभी, नल. ठीक है, तो करंट नल हो गया बेसिकली. ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन हम वापस गए. करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ये तो फॉल्स हो गया, करंट इज नल. बट अभी जो हमारा स्टैक है इट इज नॉट एम्प्टी. ठीक है, सो इट इज नॉट एम्प्टी. तो अब इधर गए वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट नल है हमारा. हम अब गए इस वाले सेक्शन में. ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू पॉप, कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, अब करंट हो गया हमारा 40. तो अभी स्टैक के अंदर बचा है सिर्फ एक एलिमेंट 50. ठीक है, करंट 40 हो गया. उसके बाद हमने क्या किया, करंट को प्रिंट कर दिया. ठीक है, 40 प्रिंट हुआ एंड देन हम जाएंगे करंट के राइट पे. तो 40 का राइट क्या हो जाएगा, 40 का राइट इज 45. ठीक है, करंट हो गया 45 अगेन. ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो नहीं है नल, यही फर्स्ट कंडीशन ही हमारी ट्रू हो गई. ठीक है, तो इस बार हम इस इनर वाइल लूप के अंदर एंटर होंगे. पुश करंट, तो 45 को हमने पुश कर दिया अपने स्टैक के अंदर. ठीक है, एंड देन करंट के लेफ्ट में हम चले गए, तो 45 का लेफ्ट हो गया, 45 का लेफ्ट हो गया नल. ठीक है, 45 का लेफ्ट हो गया नल, तो हम लूप से बाहर आ गए. देन करंट इज इक्वल टू पॉप. अब करंट हो गया हमारा, टॉप एलिमेंट क्या है हमारा अभी 45, तो इसको बाहर निकालेंगे. करंट हो गया हमारा 45 और करंट को हमने यहाँ पे प्रिंट किया 45 और हम करंट के राइट में जाएंगे, तो करंट का राइट हो गया 45 का राइट क्या हो गया, नल. तो ये हो गया हमारा नल. सो अगेन हम वापस जाएंगे, करंट इज इक्वल टू नल. ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, करंट नल है हमारा, लेकिन स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है. ठीक है, स्टैक कंटेन्स 50, तो ये बात इनर लूप नहीं चलेगा बिकॉज करंट इज नल. नीचे आए, करंट इज इक्वल टू पॉप, तो इस बार करंट, इस बार जो हमारा करंट है दिस बिकम्स 50. राइट, यहाँ से हमारा स्टैक अभी फिलहाल एम्प्टी हो गया था. करंट इज 50 एंड देन करंट प्रिंट करंट का डेटा, तो 50 प्रिंट होगा एंड करंट के राइट में हम चले आएंगे, तो करंट का राइट हो गया हमारा 70.
ठीक है, 70 हो गया। वापस इन द नेक्स्ट आइटरेशन वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो करंट हमारा नल नहीं है, अभी करंट इज 70। ठीक है, उसको हम पुश करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये स्टैक है, 70 हमने पुश किया। देन करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट, करंट के लेफ्ट में गए 60, 60 इज नॉट नल, पुश कर दो, 60 पे आ गए। देन करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट, तो अब करंट का लेफ्ट हो जाएगा, 60 का लेफ्ट क्या है, नल। ठीक है, तो अब हमारा करंट हो गया, 70 के बाद 60 हुआ था, 60 के बाद हमारा नल हो गया। ठीक है, अभी करंट हो गया नल, तो आप इधर आएंगे, करंट इज इक्वल टू पॉप, कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, 60, 60 आ गया, बाहर आ गया, करंट इज इक्वल टू 60। देन इसको प्रिंट करना है, 60 प्रिंट हुआ, और करंट के राइट में चले जाएंगे, करंट इज इक्वल टू करंट का राइट, तो 60 का राइट क्या है, बेसिकली नल। ठीक है, 60 का राइट इज नल। ठीक है, वापस अपने नेक्स्ट आइट्रेशन पे, करंट हमारा नल है। ठीक है, तो ये इनर लूप नहीं चलेगा, करंट पॉप होगा। ठीक है, तो पॉप होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट करंट हो जाएगा 70, और स्टैक हमारा अभी एम्प्टी हो गया। ठीक है, स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, 70 बाहर निकला, 70 को हमने प्रिंट किया। देन हम 70 के राइट में जा रहे हैं। ठीक है, करंट हमारा हो जाएगा 75, 75 हो गया, वापस ऊपर, तो करंट इज नॉट इक्वल टू नल, पुश करंट, 75 को हमने पुश किया अपने स्टैक के अंदर। उसके बाद करंट का लेफ्ट, 75 के लेफ्ट में जाएंगे, नल हो जाएगा, करंट हो गया हमारा नल। ठीक है, लूप से बाहर आएंगे, करंट को पॉप करेंगे, अभी जो करंट है हमारा वो है हमारा 75, राइट, 75 को पॉप कर दिया, स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, इसको प्रिंट करेंगे 75। ठीक है, 75 हो गया, करंट के राइट में जाएंगे, करंट हो गया हमारा नल, करंट इज इक्वल टू नल। नाउ नेक्स्ट आइट्रेशन, अब हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई। ठीक है, करंट इज इक्वल टू नल एज वेल एज स्टैक इज एम्प्टी, so here our iterative version of this in order traversal stops, and this is our final traversal order, this is our final traversal order, right? So I think in this short video uh, I could explain you this iterative version of this non-recursive version of in order search. If you find this video helpful, please do like and subscribe my channel. We'll see you in the next video where I'll explain you the pre-order traversal. So thank you very much. See you in the next video.